Now there is a mixed record of attendance, right? One person attended the last class and the other three had not attended. And the other three, out of the other three, that is Ram and Namita, had not attended the last class, and Saurabh, for Saurabh the audio was disturbed. So I will just recap what we did, right? We spoke about strengths the last time. Now, why is this question important to you, for you? Strength means this is something that I am good at. So if I say, Ram, what is your strength? आपका strength क्या है? That means Ram को मुझे बताना है कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ, right? And किस चीज में अच्छा हूँ, it could be that you are good at singing. But we are talking about a job related context. So when you talk about your strength, the first thing is that you have to talk about those things which can relate to your workplace. अगर मेरे डेवलपर रोल में, मेरे ऑफिस एम्प्लॉई रोल में इस स्ट्रेंथ के कारण, इस क्वालिटी के कारण मेरा काम बेटर होगा या मेरा कॉन्फिडेंस इंप्रूव करेगा, then this is definitely a strength, right? The second thing is we talk about those strengths which are clear and which apply, and not something जो कि just मैंने बोलने को बोल दिया. For example, things like I am a good listener. You are doing the listening right now. So you will say, I am a good listener. Ram will say, I am a good listener. Sanchita will say, ma'am, I am a good listener. But listening में कुछ लगता नहीं है. Right? So we talk about things which are tangible. I am good with communication, or I am good with planning in detail, and so on. So the first thing is this should apply to your workplace, and the second thing is आप ऐसी चीज बोलो जिसका value होना चाहिए interviewer के eyes में, right? Now, why is this question important? This question can be asked in many ways. You can see the ways on the board, and I have shown this to you the last time. So this is important because हमें जब अपना self worth या हमें अपना value पता है, तभी हम दूसरे को बता सकते हैं कि आप इस कारण से मुझे जॉब रोल में लो, या ये मैं अपने साथ ही एक एसेट लेकर के आ रहा हूँ, वो आपको सैलरी दे रहा है, आप काम कर रहे हो, तो आप ये नहीं बोलोगे कि सर आप मुझे जॉब दे दो, मैं काम करूंगा. वो तो कोई भी करेगा, बट मैं काम करूंगा, मैं इस चीज में अच्छा हूं, आपको ये रिजल्ट मिलेगा. दिस इज व्हाई वी नीड टू नो अबाउट आवर स्ट्रेंथ, राइट? But then how do we know about our strength? So Saurabh and Sanchita, who were present the last time, Saurabh and Sanchita, unmute yourself. Yeah. Yes, Okay, thank you. Now, मैंने आपको last time 2 clues दिए थे कि कैसे हमें पता पड़ेगा कि ये हमारा strength है. इसके लिए मैंने आपको 2 tips या 2 clues दिए थे. दोनों में से कोई भी बताओ. And try when you speak, then only you get results. तो ये कभी मत सोचो कि मेरा आंसर शायद ठीक नहीं है, मैम क्या सोचेंगी, दूसरे क्या सोचोगे, वो सब कभी नहीं सोचना. हमेशा ट्राई करो, हमेशा एफर्ट डालो. यस सौरभ? Ma'am, I attended half lecture, so I don't know. So तुम्हें कैसे पता पड़ेगा कि ये मेरा स्ट्रेंथ है? लेक्चर से नहीं, ये एक लाइफ की चीज है, ये सोचने से भी निकल जाता है. I had given you 2 very specific tips. वो अगर यार सुना या वो अगर ध्यान दिया तो वो करो, नहीं तो अपने खुद से सोच करके बोलो कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरा स्ट्रेंथ है, क्या चीज मुझे बताती है. संचिता? How do you know you're good at something? Yes, ma'am. Yes. Yes, go ahead, answer.
You can mix, like I told you, you can mix English, Hindi, Marathi, all of it is Positive. yes. Positive thinker, energetic, जो भी हो उसे, मतलब हम जो पॉजिटिव. ओके, तुमने मुझे अपने स्ट्रेंथ के बारे में बताया, राइट, दैट्स अ गुड थिंग। सौरभ, मुझे संचिता को कैसे पता लगा कि ये उसका स्ट्रेंथ है? Ma'am, with talking to the people means बात करने से मैम उनको पता चला ऑटोमेटिकली कि ये हाँ, सबसे बड़ी बात है, हमें खुद को लगता है कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं। कोई पूछता है तू ये कर लेगा, और आप बोलते हो हाँ यस सर आई विल बी एबल टू डू, या बोलते हो हाँ बिंदास ये तो मैं तुरंत कर लूंगा, या इसमें मैं बहुत अच्छा हूँ। तो सबसे पहले हमारी जो बोलते हैं गट फीलिंग, हमारे मन की आवाज हमारे अंदर से फील होता है कि हाँ हम ये कर लेंगे, और यू फील एंथुजियास्टिक, एंड ये लगता है कि हाँ ये मेरे से हो जाएगा, या मैं करना चाहता हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट है, राइट। एक तो ये है, और दूसरा है कि आपको किसी ने ये फीडबैक दिया है, तो आपके फ्रेंड्स, आपके प्रोफेसर्स, स्कूल के या कॉलेज के टीचर्स, जिस ग्रुप में आप काम करते हो वहां का कोई किसी ने कभी, हमारी जिस प्रोजेक्ट टीम है वो बोलता है ये तू कर, ये बहुत अच्छा है, राइट। तो कभी हमें दूसरा आदमी ये फीडबैक देता है कि हाँ हमारा ये स्ट्रेंथ है, राइट। तो ये दो चीजें हमें बताती हैं कि ये हमारा स्ट्रेंथ है। अब किस तरह के स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे हैं? संचिता ने आपको एक एग्जांपल दिया है फॉर पीपल हु हैव joined today for the first class and for everybody. Now I had showed you a list of strengths, जो कि देख के आप समझ सकते हो कि ये वर्क रिलेटेड चीजें ये हैं, ये पॉजिटिव्स हैं, ये जॉब प्रोफाइल के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो लेफ्ट साइड में जो है वो मैंने उस स्ट्रेंथ के का नाम दिया है, और राइट साइड में उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। कहीं कहीं मैंने डिस्क्राइब किया, जैसे आप लेफ्ट का वन राइट का वन मैच करोगे तो वो इट इज अबाउट द सेम थिंग। 3 राइट साइड में नहीं है, लेफ्ट में 3 है, राइट साइड में 3 नहीं है, तो जो मुझे लगा कि बहुत इजी है तो वो मैंने नहीं एक्सप्लेन किया है। So look at the left and the right screens. This is for Rampal and Namita Nigam, right? Look at that. And Saurabh, if you did not see this slide last time, या आपका कनेक्शन अगर ब्रेक हो गया था तो आप भी वो देखो और उस पे ध्यान रखो, right? So first is articulation, good communication skills. This is good speaking skills. आप एक्सप्लेन कर सकते हो, आपकी बात दूसरा बंदा बराबर समझ जाता है, right? Then the second is problem solving skills. आप लॉजिक यूज करके आप लॉजिक यूज करते हो, जो कि किसी भी सिचुएशन में हमें हेल्प करता है, right? Then we have commitment or dedication to your job, office, role, to the work that you are doing in hand. जॉब्स का डेडिकेशन उतना जल्दी नहीं दिखेगा, लेकिन तुम जो हाथ में तुमने टास्क लिया हुआ उसका डेडिकेशन तुरंत दिख जाएगा। ओके, नाउ fourth is you are determined or you are tenacious, or you have the ability to learn from failure, you don't give up easily, right? Fifth is enthusiastic, energetic, positive thinker, right? Fifth, right side. Then we have, next slide, focused. You are focused on the task
that you have in hand, आप diverted या आपका attention इधर उधर नहीं जाता है. 7th, observant, right? You notice and remember things about places and people. 8, you are quality conscious. ये एक बहुत बड़ी चीज है. अगर आपके काम की क्वालिटी अच्छी है तो आपको लाइफ में हर जगह सक्सेस मिलेगा. Resourceful, you can find solutions to problems by yourself, right? ये नहीं कि आप बैठोगे कि बॉस बताएगा या ट्रेनर बताएगा या मैम बताएंगी या सर बताएंगी या मेरे गार्जियंस बताएंगे. आप खुद ट्राई करते हो. 10th, सेल्फ रिलायंट, इंडिपेंडेंट, राइट? आप दूसरे के लिए नहीं बैठते हो, आप खुद वॉलंटियर करते हो, बोलते हो कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ या क्या मैं ये ट्राई कर सकता हूँ. टाइम मैनेजमेंट मीन्स आप पंक्चुअल हो, आपका काम टाइम पे सबमिट होता है. स्कूल कॉलेज हर जगह आपने मोर और लेस हमेशा टाइमलाइंस का ध्यान दिया है. 12th इज यू कैन वर्क अंडर प्रेशर, राइट? Now pressure could be because of more work, less time, because आपके teammates अच्छे नहीं हैं, because it could be any reason. Pressure could be because of any reason. But आप manage कर लेते हो, आप शांत दिमाग से सोचते हो. और मैंने एक बहुत जरूरी बात बताई कि आपके बोलने से कुछ नहीं होता. आप कुछ भी बोलोगे, ऐसा नहीं है कि मैं विश्वास कर लूंगी. मैं कैसे विश्वास करूंगी जब आप मुझे बताओगे कि मेरा ये स्ट्रेंथ है और मैंने इसको कैसे यूज किया है और आप मुझे एग्जांपल्स दोगे. लाइक संचिता ने हमें बोला, उसने कहा कि मेरा स्ट्रेंथ ये है कि मैं एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक हूँ, राइट? सो आई एम गोइंग टू आस्क हर अबाउट एन एग्जाम्पल और सिचुएशंस. व्हाई डज शी से दिस? सो द अदर्स ऑफ यू just look at this और खुद से सोचो मैं क्या चीज में अच्छा हूँ, and give me a list of 3 strengths that you have, right? आप सोचो कि मेरा क्या स्ट्रेंथ है. सोचने में कुछ नहीं, तो मैं 15-20 सेकेंड में आंसर मिल जाएगा. तब तक मैं संचिता से बात करती हूँ. संचिता, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ and then you will speak. So after Sanchita it's going to be Saurabh, then Namita Nigam, and then Rampal. Okay. Yes, Sanchita. Yes, can we start with you? Any questions at this point? Like Saurabh, Namita, कोई question है? No, ma'am. कोई डाउट है? इसके बाद इसके बाद आप बात करोगे सौरभ, और उसके बाद फिर Okay, ma'am. नमिता. Yes, and don't use this time to look here and there. Use this time to think कि मैं क्या strength बताने वाला हूँ और मैं क्या example देने वाला हूँ. Yes, Sanchita, please start. Okay, ma'am. I will try. Ma'am, my strength include an ability to work effectively as part of a team, being supportive of other team member, being able to focus on the task in. Hello. Yes, yes, I can hear you. बोलो, मैं तुमको बहुत अच्छे से सुन सकती हूँ. And ma'am, and I am hungry to learn, and I have that passion to learn. I am passionate about work. I have so an if you are ability to eager work hard to learn, complete any task. अगर आप सीखना चाहते हो तो ऐसी में मुझे कोई चीज बताओ जो तुमने खुद से सीख ली हो. छोटी भी. Ma'am, dancing. डांसिंग क्या यूट्यूब मैम? वीडियो से. Yes, ma'am. ओके, और कुछ?
and no ma'am. नहीं, तुमने और बहुत कुछ सीखा होगा, थोड़ा सा बस सोचने की जरूरत होती है संचिता। ठीक है। और मैम यू आर एन वो जो इफेक्टिव पोएम वगैरह, हाँ बोलो। व्हाट मैम? Why do you say you are an effective team worker? कॉलेज Because के प्रोजेक्ट का या कहीं का एग्जांपल दो। yes, college project. हाँ, क्या किया तुमने और कैसे किया उसको अच्छे से? संचिता, इंटरव्यू में इतना छोटा सा बताने से नहीं होगा, तुम ये समझ रही हो ना? तो कॉलेज टीम के बारे में थोड़ा और बताओ, और टीम वर्क के बारे में, टीम के बारे में नहीं, टीम वर्क के बारे में, टीम प्रोजेक्ट के बारे में। क्या प्रोजेक्ट था, तुमने क्या किया, कैसे किया? You can mix Hindi and talk. That Can I is not a speak problem. Hindi? हाँ, Okay मैम, थैंक यू। मैम हमारा प्रोजेक्ट फुटवेयर एनर्जी जनरेट था। उसके लिए हम लोगों ने इंफॉर्मेशन की, और मैम कंपोनेंट्स वगैरह एनर्जी सब हम जनरेटर लोगों ये ने क्या वो था? इसमें किया। एक्चुअली हुआ क्या प्रोजेक्ट में? फुट स्टेप पावर जनरेटर इन मोबाइल चार्जर। ओके, तो अगर आप आपके फुटस्टेप से एनर्जी जनरेट हो रही थी और इससे मोबाइल चार्ज हो रहा था, ऐसा है क्या? मतलब चार्जर लगाने के लिए जरूरत, हाँ मतलब चार्जर लगाने के लिए हम लोगों को जरूरत नहीं थी। आप वॉक करके और अपना मोबाइल चार्ज कर सकते थे। वॉक या रन करके हम लोग, हाँ यही। तो ये थ्योरेटिकल रहा कि ये सच में हुआ? नहीं मैम, ये हम लोगों ने किया है मैम। ओके, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब ये मैंने थोड़ा कभी नहीं हमारा सुना है, प्रोजेक्ट कभी नहीं सुना है इसमें क्या यूज हुआ। इसमें मैम आर्डिनो आईडीई वगैरह सब यूज हुआ करके हम लोगों ने किया। सौरभ, यस मैम। नमिता तुम किस ब्रांच में थी? नमिता नहीं, संचिता तुम किस ब्रांच में थी? EXTC। सौरभ आप किस ब्रांच में थे? मैम कंप्यूटर साइंस। ओके, तुम नमिता की बात सुन रहे हो? यस मैम। ओके नमिता, इसको इसका टेक्निकल एक्सप्लेन करो सौरभ को। वो मैं टेक्निकल लाइन से नहीं हूँ, लेकिन तुम जो एक्सप्लेन करोगी सौरभ तो समझेगा। यस मैम। तुमने जो बताया कि फुटस्टेप एनर्जी जनरेटर, उससे हमारा मोबाइल चार्ज। मैम श्री संचिता, मैम श्री संचिता। हाँ संचिता, नॉट नमिता। तुमने जो बताया यस मैम, वो एक्सप्लेन करो, उसका हाँ। टेक्निकल एक्सप्लेन करो, क्या प्रिंसिपल था उसका और क्या डिवाइसेस तुमने यूज किए। समझो कि सौरभ तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है, वो एक मिनट, हाँ। कंप्यूटर लाइन का वो सब समझता है। And you don't have to worry about English. बिंदास हिंदी में बोलो। In this project, मतलब in this project we are generating electric power as non-conventional method, and walking or running on the मिक्स कर footstep सकते हो, you don't have to worry about non English.
ओके ओके मैम। उसमें फिजो इलेक्ट्रिक सेंसर यूज किया था और सॉफ्टवेयर आर्डिनो आईडीए का यूज हुआ था। और हाँ, और मैम याद नहीं आ रहा है कुछ कुछ। फिजो इलेक्ट्रिक सेंसर और एसी रिपल्स न्यूट्रलाइजर और ये हम लोगों ने, मैम याद नहीं आ रहा है, सॉरी मैम। और रिचार्जेबल बैटरी भी यूज किया था और वो 12 वोल्ट का था। That's it. Okay, Saurabh, are you able to understand from Namita, Sanchita's example? No, ma'am. This is what the problem is. Sanchita, आप उसको अपनी बात पूरी समझा नहीं पाए। Yes, ma'am. तो तुमने एग्जाम्पल दिया कि तुम बहुत टीम वर्कर, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन कैसे तुम ये इसको इंटरव्यूअर को कन्विंस कराओगी कि तुम अच्छी टीम वर्कर हो? और तुमने डांस का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, वो सही है। Actually, ma'am. यूट्यूब वीडियोस देख के डांस सीख लिया, वो अच्छी बात है, लेकिन डांस एक ऐसी चीज है जो कि एक्चुअली तुम्हारे जॉब प्रोफाइल में लगेगी नहीं। तो तुमको और एक चीज का एग्जाम्पल देना है जो कि तुमने Yes, सीखा ma'am. और खुद को बेटर किया और वो हमारे जॉब प्रोफाइल में मैच होती है। एग्जाम्पल्स थोड़े और सोचो, तब तक मैं सौरभ से बात करती हूँ। तुम और कोई स्ट्रेंथ देना चाहती हो? नो मैम, एक्चुअली प्रोजेक्ट का मैम याद नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही याद है, किस साल पास इसलिए किया है? प्रॉब्लम हो रही है। इस साल ही पास किया है मैम। फिर ये हालत है। मैं 20 साल पहले जो पास किया है, जो चीज मैं उसका प्रोजेक्ट आज बता सकती हूँ 20 साल बाद। ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? सिर्फ इंटरव्यू में बैठने से सिलेक्शन नहीं होता है, हमारे आंसर्स वैसे होने चाहिए और उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। तुम एग्जाम्पल सोचो, ठीक है? अभी मैं इससे सौरभ से बात करती हूँ, तुम एग्जाम्पल सोचो। ओके, यस सौरभ। Yes, ma'am. Ma'am, my strength is I can do multiple things at a time. Means I can now I am doing MSc and after I'm doing a course and I am a freelancer also. So I think So as it's a my freelancer, strength what that do I you can do? do. I made a website for people, Okay, WordPress websites. you make I also have websites my own for, websites. Yes, customers, ma'am, for clients. so you create websites or update websites, Yes. सब कुछ? No, ma'am, I create websites. Okay. लिंक And में एक वेबसाइट का नाम डालो। लिंक मीन्स चैट में। yes. दैट्स अ वेरी यूजफुल थिंग। तुमने जो बोला है बहुत अच्छा ये है, लेकिन ओके गो अहेड। तुम चैट में अभी लिख रहे हो चैट में या बाद में लिख देना? फर्स्ट यू फिनिश टॉकिंग अबाउट इट सो यू कैन डू मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And ma'am, I can interact with people You can because interact with in my people. field, yes, because in my field, the people means the front end developers and the back end developers work together. So for that, it's a main thing to interact so that we can make a good project. तुम्हारा फुल स्टैक है ना? Yes, ma'am. Okay, so graduation is 2020. So Yes, ma'am. 2020 में तुमने MSc ज्वाइन किया है, 3 years कोर्स? Sorry, ma'am. तुम्हारा MSc 3 years कोर्स है या 2 years? Yes. No, ma'am. 2 years course. Okay.
So this is a very useful example. जैसे तुमने मेरे को ये बोला you can do multiple tasks at the same इसको actually ये नहीं बोलेंगे कि I can do multiple tasks at the same time. See, you can put it. तुम्हारे पास पेन एंड पेपर है सौरभ पास में? Yes, ma'am. हाँ तो लिखो. Yes, ma'am. Good self learning capacity. Right? मैं तुमको पॉइंट्स दे रही हूँ, तुम वो चूज करके बढ़ाना. And you can take notes Okay, in ma'am. मराठी, हिंदी, इंग्लिश जो भी तुमको जमता है. But this you Okay, should ma'am. write good self learning capacity. Right? Can handle multiple roles. Okay. Can handle multiple roles. Okay. और उसके बाद तुम अपना एग्जाम्पल दो, ये जो है. Okay, ma'am. And you can write that I am ambitious and I want to achieve things. Okay, ma'am. Ambitious, want to achieve things in life. Okay. Ability to interact with people, ये तो तुमने People. दिया ही है. और जब तुम Yes. अपने एग्जाम्पल्स हैं उसको उठाओगे तो तुम ट्राई करो डिफरेंट एग्जाम्पल्स यूज करने का. Okay, ma'am. और स्पेसिफिकली सोच करके रख लो. इसीलिए मैंने बोला सौरभ कि तुम इसको पेन और पेपर पे लिखो, क्योंकि जब हमारे पास एग्जाम्पल सेट है तो तुम्हें जब इंटरव्यू, मान लो तुम्हारा स्काइप पे इंटरव्यू ले रहा है और तुम उसको एग्जाम्पल दे रहे हो और 1 या 2 वर्ड में उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, या वो एग्जाम्पल क्लिक नहीं कर रहा है, तुम बोल रहे हो कि सेल्फ लर्निंग है. जैसे देखो संचिता का प्रॉब्लम क्या हुआ, उसने कहा कि सेल्फ लर्निंग है, पैशन फॉर लर्निंग इनफैक्ट उसने कहा, लेकिन वो उसका एग्जाम्पल सिर्फ डांस दे पाई. लेकिन मैं अगर फुल स्टैक डेवलपर या जावा डेवलपर ढूंढ रही हूँ तो डांस और ये डेवलपर 100 कोई मैच नहीं है. लेकिन उसको अगर वो ये करके सीख, एग्जाम्पल एक ऐड कर देती कि मैं यूट्यूब वीडियो से मैं डांस भी मैंने सीखा हुआ है और मुझे ये चीज नहीं आती थी, इसका शॉर्टकट नहीं आता था, कोई भी टेक्निकल चीज का, तो ये मैंने यूट्यूब वीडियो से सीखा. या फिर हमने कॉलेज में ये प्रोजेक्ट किया था जो कि हमने फुटवेयर से एनर्जी जनरेटर बनाया, तो पर उसमें हमें ये चीज नहीं आता था. तो इसके लिए हमने एक स्पेसिफिक वो यूट्यूब वीडियो का नाम दे देती और बोलती कि उसको देख करके हमने ये सीखा और हमारा जो है वो इस तरह के हमने शूज पहने, ये किया और हमारा मोबाइल जो है वो मान लो 8% पावर पे था और वो चार्ज हो करके और 58 हो गया. तो तुम देख रहे हो कितना डिफरेंस हो रहा है. मैं एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मैंने ये चीज यहाँ से सीखी और वो सीख करके मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया और मेरे, अब मैं उससे पूछ रही हूँ तो वो कह रही है कि प्रोजेक्ट किए बहुत टाइम हो गया है. बहुत टाइम नहीं हुआ है, एक्चुअली 1 साल ही हुआ है. तो फिर वो मैं कैसे उसकी बात का भरोसा लूंगी कि वो कह रही है कि मुझ में लर्निंग के लिए बहुत पैशन है, क्योंकि वो जो बोल रही है और वो जो एग्जाम्पल दे रही है वो मैच नहीं कर रहे हैं. तो मुझे डाउट होता है. You see the problem, Namita, Saurabh, Ram, everybody. Your example has to match what you say. Now, if Saurabh says I can do multiple roles, so what can you do? So I did my MSc, baat khatam. But when he tells me I did my MSc and then I can also create websites, I'm also doing a full stack course at Prognos. मुझे 3 एग्जाम्पल मिल रहे हैं कि जो मोरलेस साइड बाय साइड है. और क्योंकि वो अगर वेबसाइट बनाता है तो उसको तो सीधी सी बात है, उसको क्लाइंट से उसको इंटरेक्शन करना ही है, उसको इंफॉर्मेशन निकालना है. तो वो भी सही है कि वो विल बी गुड एट इंटरेक्टिंग विद पीपल. और मैंने अभी आपको बोला है, आप उस पे सौरभ आप चैट पे वेबसाइट का अपना नाम डाल देना या लिंक डाल देना अगर डाल सकते हो तो मैं ये खत्म करके और मैं तुम्हारा वेबसाइट देख लूंगी और मैं समझ जाऊंगी कि तुम किस लेवल का आउटपुट है तुम्हारा. So see what you Yes, say, ma'am. I will verify immediately.
Okay, ma'am. और अकॉर्डिंगली मेरा इंप्रेशन जम जाएगा कि हाँ ये बंदा काम का बंदा है, ये जो बोलता है वो करता है. यू डोंट हैव टू बी द बेस्ट, बट you have to do what you say, right? Thank you, Saurabh. I saw it. Okay, ma'am. Thank you. Saurabh, do you want to add anything else? Ma'am, I am a self-learner. Means That I I- can see. So जैसे और तुम क्या examples दे सकते हो self learning के? मैम मैम वर्डप्रेस से सीखा है मैम से. इससे वर्डप्रेस मैम, वर्डप्रेस पूरा सीखा है मैम सेल्फ लर्निंग से, सेल्फ लर्निंग से. WordPress. Okay. So वैसे ही this is for everybody. When you say you are a self learner, तुमने वेबसाइट से सीखा या तुमने ब्लॉग से सीखा या यूट्यूब वीडियो से सीखा, तो एकदम स्पेसिफिक एग्जाम्पल दो कि मैंने ये चीज सीखा, और वो एग्जाम्पल उस समय तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा. तो आज जब मैं सेशन ले रही हूँ, साथ में पेन और पेपर रखो और ये लिखो. हमें रिजल्ट मिलता है कॉन्क्रीट काम करने से, सिर्फ क्लास अटेंड करने से नहीं मिलता है कि हमने 17 जुलाई को क्लास अटेंड कर लिया तो ऐसा कुछ नहीं है. वो नॉलेज या वो स्किल ऐसा नहीं है कि वो एक टैबलेट में है, मैं तुमको खिला दूंगी और वो हो जाएगा. तुम सुनो और पेन और पेपर पे उस पे अपने स्किल्स लिखो और अपने एग्जाम्पल्स लिखो, और उस पेन और पेपर नोट को पेस्ट करो या अपनी नोटबुक में लिखो, जिससे कि जब तुम्हारा इंटरव्यू का कॉल रहे तो तुम उसको रिवाइज कर सको. आज मेरे साथ आराम से बात कर रहे हो और एग्जाम्पल नहीं आ रहा है, तो इंटरव्यू में स्ट्रेस के सिचुएशन में कैसे एग्जाम्पल आएगा? संचिता, आप मेरी बात समझ रहे हो संचिता? Yes, ma'am. हाँ, तो देखो तुमने सौरभ का एग्जाम्पल सुना. Yes, ma'am. सुना मैंने. हाँ, तो हमें कैसे बताना है ये समझो कि हमें कैसे बताना है और इंटरव्यूअर को कैसे भरोसा होगा. राइट? ओके. देन Okay, ma'am. सेल्फ लर्निंग का तुमने एक वर्डप्रेस बोला ना सौरभ? नेक्स्ट पर्सन इज नमिता. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Do you want to add anything else, Saurabh? No, ma'am. Okay. Now, one question common to everybody is also, what is your weakness, right? And how have you corrected it, right? Namita, मैं तुम्हारा बस ले रही हूँ. So I have shown you a slide. ये weakness से related हैं और ये guideline है. अगर तुमसे पूछा जाए तुम्हारे weakness के बारे में, तो लंबी list नहीं देनी है, right? Do not give a long list here, and give one specific weakness and tell the interviewer how have you corrected it or made it less so that it does not affect you so much so. Okay? तो इसके बाद संचिता और सौरभ तुमसे मैं वापस आऊंगी और मैं सिर्फ एक वीकनेस के बारे में जानना चाहती हूँ. ज्यादा है तो ठीक है, मेरे साथ बात करो, बट आई विल कम बैक टू यू. यस नमिता, लेट्स हैव योर स्ट्रेंथ. Yes, ma'am. So I think myself as an observant person. Okay, now 1 minute. एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ. Yes. Sanchita, when you started answering, you said, I will try. I will try to answer this. Now, Namita, you are starting off with I think. ये think और try क्या दिखाता है कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है. मैं अभी सामने में हूँ, अगर तुम्हें नहीं लगता है, तुम्हारा एग्जाम्पल नहीं जमेगा, तो मैं किस लिए हूँ ट्रेनर? मैं तुमको बताऊंगी. सो यू डोंट थिंक, यू शुड बी श्योर. अनश्योर लगोगी तो मैं तुम्हें बताऊंगी. डोंट स्टार्ट विथ अ फॉल्स नोट. राइट? ओके, स्टार्ट ऑन अ पॉजिटिव नोट. I am good at, yeah, my strength is that way.
Yes, Namita. Okay, so can I say I find myself as an तुम बोलो तो मैं तुम्हें आगे बताती हूँ क्या ठीक नहीं जा रहा, Yes, पहले आंसर तो दो. yes, ma'am. या So yeah, my strength is this, like I'm an observant person. As while I was doing my bachelor's, I was a part of a project named Online Bookstore. So I found some errors in that, like I found some missing modules which others not. I found like for example, the purchasing, while we purchasing a book, the price was different, and while it moved to the cart, it was different. ओके. So like these things I find, I report to my fellow teammates and worked on it. अच्छा, जब प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा था तब तुम्हारा क्या रोल था? Ma'am, I was a part of the documentation majorly. Documentation. Okay, that means Ma'am, actually, yeah. preparing maybe the PPT slides, the word for document for it, Yes. so written paper Yes, report ये yes. करते हैं. और Yes, ये क्या ma'am, because yeah. ऑनलाइन क्या स्टोर था ये? बुक स्टोर. Ma'am, yeah, yes, it was bookstore, and I was also, I've done a front end work in that. ठीक है, फ्रंट एंड में क्या था? It was PHP. Like I was given small modules to work, but majorly I was looking into the documentation and presentations. Okay. Like we have 5 to 6. So your information, Namita, right? Same matter, same जो कुछ तुमने बोला है एकदम same matter मेरे से सुनो. Okay, now supposing you are interviewing me. So my first strength is that I am very thorough with my work and my work quality is good. In the college, we did a project which was an online bookstore. So on the front end, I worked on the PHP module with, now fill in the technicals, right? Now, but my primary work was documentation. So I prepared just a minute. So I prepared the slides, the PPT slides. I prepared the Word document, 1,000, 1,200 or 36 pages, whatever it was, Word document, which was basically our project report. And I also went through the entire website. Now, when I was doing it, I saw that there were some errors. For example, the price in the car, the price at the time of selecting the product and the final price in the cart of the same product was different. Then there was another error in dash. So I pointed out these things to my teammates. And I'm just giving you this an example to show that I am very thorough with my work, and the quality of the work that I finally turn out is good. Right? Okay. So, Yes, Namita, what you have said, I believe it. But examples कैसे देने हैं ये तुम समझो. और हमेशा जो तुमने 3 काम किए इसमें, 3 काम किए कि तुमने एक फ्रंट एंड का काम किया PHP वाला जो तुमने बताया. The second thing is तुमने documentation का सारा काम किया, which means you are good with MS Word and you might have also prepared the slides. दोनों 2 तरीके के काम है. तो तुमने जो स्पेसिफिकली किया, अगर सिर्फ थीसिस वाला किया है तो बताओ कि आई एम एक्सेलेंट विद MS Word, राइट? बिकॉज ये उसी को मिला होगा जिसकी इंग्लिश अच्छी है, जिसका बेसिकली MS Word में जो पर्सन बेस्ट होगा टीम में. 4 लोगों की टीम थी या बड़ी थी? No, ma'am, only 2. कितने लोग थे टीम में? 2, ma'am, we were only 2. Yeah. ओके, राइट. और फिर तुमने फाइनली पूरा प्रोजेक्ट देखा और ओवरसी किया. Yes.
और तुमने एरर्स ये किए. What is the second thing that you want to say? I can say that I can work under pressure because while I was doing my academic projects, I was also part of an internship at CATDesk, and Internship yeah. at? CATDesk Training Institute. So what did you do there? I studied their Python development. अच्छा, वहां पे तुम सीख रही थी कुछ? Yes, ma'am. Okay. So till what level? Python का क्या तुमको basic knowledge क्या है? Basic level I did. And then you found it boring? Because ये तुमसे वो पूछेंगे कि No, अगर ma'am, आप सीख रहे थे तो आपने छोड़ा क्यों? No, ma'am. I developed then a project based on Python itself, like it's with its GUI, graphical user interface Tinkerter. For the college, but this I was used not for the college project. No, ma'am. I have studied Python from that institute, and from that knowledge, I developed my academic project Namita, further, you major did not project. get my question. देखो, अगर तुम पाइथन सीख रही थी और पाइथन बहुत डिमांड में है, राइट? तो Yes, अगर ma'am. तुम सीख रही थी तो तुमने प्रोजेक्ट बनाया, वो मैं समझ गई, लेकिन तुमने छोड़ा क्यों, ये जानना बहुत जरूरी है. You found it boring, या तुम उतना सीख नहीं पाई, या तुम डेवलपमेंट में जाना नहीं चाहती थी, तुम you wanted to stick to testing. रीजन क्या था? Yes, ma'am. Ma'am, this is the reason. Like I want to explore more into testing field. Okay, so be very clear that I learned learned Python at an institute and I did a project, but my heart was more into testing and I wanted to go into that field. So it was fine. अगर वो तुमसे पूछेगा पाइथन क्यों छोड़ दिया, हाँ सर ऐसे ही, हाँ सर छोड़ दिया, आगे नहीं किया, तो रीजन समझ में नहीं आता है, या लगेगा कि ये लड़की को, इसको मैं जॉब अपने कंपनी में लूं या ऐसे ही कुछ दिन जॉब करके छोड़ देगी. लेकिन जब तुम बहुत क्लियर रहोगी कि सर मैं टेस्टिंग में जाना चाहती थी, पाइथन मैंने सीखा था क्योंकि आदमी के लिए वो यूजफुल होता है, थोड़ा टेक्निकल, एक्स्ट्रा टेक्निकल नॉलेज, बट मैं डेवलपर नहीं बनना चाहती थी, मैं टेस्टिंग फील्ड में रहना चाहती हूँ. तो एकदम सही है, कोई इश्यू नहीं है. Yes. Okay, anything else, Namita? After this, we'll ask Jagriti to speak up, right? Jagriti, आप next रहोगे. And yes, ma'am. The other person, 1 minute, I'll just get out the list. This is Rahul. Rahul, पूरा नाम? Rahul, what's your full name? Rahul Barate. Okay. So, संचिता और कुछ बोलना, नमिता और कुछ बोलना चाहते हो? No, ma'am. That's Okay, Jagriti, start. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. My strengths are I am self-motivated girl. I am very punctual. I am hard working. Hard working means I am give my first priority on my work. Okay. As I am fresher, I am learning only theoretical, and now I am implement each and everything as a practically. Continue. Specifically, what is the strength that you want to talk about? First strength. Ma'am, I am self-motivated and I am punctual on my work. Okay, दोनों दो चीजें हैं. Self motivated, इसका example दो.
हाउ डू आई बिलीव यू? क्या तुमने सेल्फ मोटिवेशन से क्या हासिल किया है या सीखा है? I can't give up easily if some तो work are कौन सी some चीज तुमने गिव अप नहीं की? ma'am my final year project. My Which final year project? project ma'am face recognition with Python. ठीक है, तो उसमें क्या चीज तुमने अपने मोटिवेशन से सीखी? Ma'am, I am working on my group, but in my group only I and one more girl, but she is not help me in any work, in PPT presentation, in report, in programming. Uh, she did not help me any work. No, एक I minute. I No, completed. this is 1 minute. Jagriti, stop. Now this is for everybody. कभी भी अपने बारे में पॉजिटिव बोलो, लेकिन कभी भी किसी दूसरे के बारे में नेगेटिव इंटरव्यू में नहीं बोलना है। मेरे सामने बोल दिया अलग बात है, मैं तुमको रीजन समझा रही हूँ। Yes, ma'am. हमारी जो टीममेट है या प्रोजेक्ट मेट है या क्लासमेट है, वो और तुम क्या हो? टीम मेंबर्स हो, राइट? तो इंटरव्यूअर Yes, इसको अगर ये सच हो सकता है कि उसने तुम्हें बिल्कुल हेल्प नहीं किया और सारा काम तुमने किया। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये तुम गलत कह रही हो सकता है यही सच हो सकता है नहीं होगा ही, राइट? लेकिन जब Yes, तुम ma'am. इंटरव्यूअर को ये चीज बताती हो तो इंटरव्यूअर इसको कैसे इंटरप्रेट करता है कि अच्छा, ये लड़की आज मुझे अपनी फ्रेंड के बारे में बता रही है कि उसने कुछ काम नहीं किया, मैंने सारा काम किया। कल को मेरी कंपनी में जब ये रहेगी तो मुझे ये बोलेगी कि सर वो टीम मेंबर कुछ काम नहीं करता है, मैं काम करती हूँ। You see my point? Yes, ma'am. So this will not come across as a positive thing. This will come as a negative thing. उसने नहीं किया वो छोड़ो, इंटरव्यू उस लड़की का नहीं है, इंटरव्यू जागृति कुमारी का है। तो जागृति कुमारी ने मुझे दो चीजें बोली, दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक तो कि तुम पंक्चुअल हो, एक तो कि तुम सेल्फ मोटिवेटेड हो। तो सेल्फ मोटिवेशन से मैं तुमसे पूछ रही हूँ तुमने क्या सीखा? फाइनल ईयर फेस रिकॉग्निशन का पाइथन पे प्रोजेक्ट था। अब तुम दूसरी लड़की की बात नहीं करो, तुम मुझे बताओ कि तुमने क्या सीखा और खुद क्या किया। दूसरे को एकदम छोड़ो, दूसरे का इंटरव्यू नहीं हो रहा, इंटरव्यू तुम्हारा हो रहा है। Yes, ma'am. क्या सीखा, कहाँ से सीखा और उसको किधर इम्प्लीमेंट किया? हाँ बोलो। Yes, ma'am. I am completed my project in last moment. My Viva is starting, but I'm implement my project. It's finally work. Then I will show my teachers कि my project actually how is work, and finally my teacher is very happy कि Okay. you are implement your project, and my guide also proud कि you are done it, because she is thinking कि we are not showing anything in my project. My guide also very nervous because we are nothing to do at the last Okay, तुम moment. और कोई एग्जांपल दे सकती हो सेल्फ मोटिवेशन का? Yes, ma'am. Ma'am, I love to bike riding, and I'm going always my मोटरसाइकिल या साइकिल? my motorcycle ओके bike, and I am always going to bike my coaching, and one day I am accident with a truck, and so what does this show? ma'am, there was no one can help me, and I am. नहीं, तुम्हें चोट लगी थी क्या? Yes, ma'am. हाथ कलाई टूट गई थी हमारी, और मैम उस सिचुएशन में हम मतलब खुद से सारा सब कुछ किए, बाइक उठाए, घर तक खुद चलाकर आए। फिर हॉस्पिटल गई? Yes, ma'am. But when I see my parents and I cried too much. ठीक है जागृति, you stop here. The others who are listening to her,
आपने ये एग्जाम्पल सुना, ये जागृति के बारे में हमें क्या बताता है? This question is open to everybody except जागृति. जागृति ने जो एग्जाम्पल दिया, ये सुन के तुम्हें क्या पता लगता है इसके बारे में, जागृति के नेचर के बारे में? हाँ, कोई अटेंशन नहीं पे कर रहा था. You heard Jagriti's example. Please unmute yourself and tell me, what does this tell you about Jagriti? Saurabh? That she never gives up on hard situations, tough situations. That she has? That she never gives up in tough situations. Okay. That she never gives up in tough situations. What else? Saurabh, what does this tell you about Jagriti? Nothing. I'm self-dependent. Self-dependent. Yeah, this tells you that Jagriti is independent and एक बहुत बड़ी चीज, इंडिपेंडेंट तो ठीक है, वो बाइक चलाती है और अपना कोचिंग या वो तो, लेकिन वो सेल्फ डिपेंडेंट, एक्सीडेंट वाला एपिसोड हमें क्या बताता है? मैम सेल्फ डिपेंडेंस है, खुद पर डिपेंड है मैम. वो तो मैं समझ गई, लेकिन वो एक और चीज बताता है, और वो और बड़ी चीज है मुझसे. ये बताता है कि जागृति is able to keep a cool head. मैंने जो तुम लोग को लास्ट पॉइंट दिया था, ये वाला, ability to work under pressure, right? She can deal with things. एक्सीडेंट हो गया, उसको साफ पता लग रहा है, और ट्रक काफी बड़ा सा होता है, और ट्रक और बाइक का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, और वो खुद बाइक चला करके घर में पहुंची, और उसके बाद अपने पेरेंट्स को बताया, और फिर ये नहीं कि उसने फोन करके और पैनिक करना शुरू किया. दिस शोज दैट शी डज नॉट पैनिक. तो जागृति, तुमने ये जो पूरा केस बताया, ये एग्जाम्पल बताने के पहले उनको बताओ कि आई एम अ काम हेडेड एंड अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन. तुम्हारे पास पेन पेपर है वहां? Yes, ma'am. लिखो, आई एम काम, CALM, calm headed and I am able to deal with situations. उसके बाद बताओ कि I am a good bike rider. I have a motorcycle and I use it to go to my coaching class. One day I had an accident with a truck and I could make out that my wrist, there was a big injury to my wrist, but I pulled myself together और मैंने हिम्मत नहीं हारी, और मैं बाइक वाइक सीधा करके और फिर मैं लेकर के घर गई. फिर मैंने पेरेंट्स को बताया, और जब हम फिर हॉस्पिटल गए तो पता चला कि मेरा रिस्ट का फ्रैक्चर हो गया है. दिस क्लियरली शोज कि तुम हिम्मत वाली लड़की हो. ऐसा नहीं कि मोबाइल था साथ में, फोन करके अपने मदर फादर को फोन करके और तुमने रोना शुरू किया, राइट? सो पूरा एपिसोड बताने के पहले तुमको ये बताना है कि आई एम काम हेडेड, कीप कूल इन emergency situations, right? I keep cool in emergency situations. Yeah, I am able to handle big issues. समझे अब जागृति आप? Yes, ma'am. और दूसरा जो है, उस एग्जाम्पल में फ्रेंड का कुछ भी तुम्हें शिकायत नहीं करना. जस्ट से my friend did not do much, so I learned these things from YouTube and I showed it to my project coordinator and they were very happy. So I can say that I am self-motivated and have that learning capacity. दूसरे के बारे में नेगेटिव हमें अवॉइड करना है.
बस बोलो कि नहीं उसने नहीं किया, उसने ज्यादा काम नहीं किया। ओके, एनी अदर थिंग? जागृति और कुछ बोलना चाहती हो? No, ma'am. सो ये हो गया. नाउ वी विल गो बैक टू वीकनेसेस. सो वील स्टार्ट अगेन विद, चलो सौरभ लेट्स स्टार्ट विथ यू. वीकनेस कौन सी चीज है जो कि आपको इम्प्रूव करनी है अभी? मैम I can't handle stress, ma'am. You can't Handle stress means handle I stress. can't work in critical situation. Need calm to work. हाँ, जैसे किस टाइप की सिचुएशन से आपको प्रॉब्लम होती है? Yes, ma'am. नहीं नहीं, मैं पूछ रही हूँ. यस मैम नहीं, तुम हिंदी मिक्स करके बोलो. किस तरह की सिचुएशन से प्रॉब्लम होती है? Ma'am, like stress में means ma'am कोई तुम मेरे को बोल रहे हो कि तुम मल्टीटास्कर हो, तुम बहुत कुछ हैंडल कर लेते हो. अभी तुम Yes. बोल रहे हो कि मैं स्ट्रेस नहीं Yes. हैंडल कर सकता हूँ. यस मैम मीन्स डेडलाइंस वगैरह होती है ना मैम, मीन्स आज चाहिए वो चाहिए, मीन्स अपन प्रोजेक्ट में मीन्स प्रोजेक्ट वगैरह करते हैं कॉलेज के लिए एंड दे सेड आज ही तो चाहिए, वो कल ही तुम्हें प्रेशर में चाहिए. डालता है. यस मैम. ओके. और किस तरह के सिचुएशन से तुम्हें प्रेशर आता है? नहीं मैम, और तो कोई ऐसा मैंने ऑब्जर्व नहीं किया मैम. यहाँ वो एक मिनट आओ तो. Okay, now see what you should do. सौरभ इज, ऐसे मत बोलो कि मैं स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाता हूँ. तुम इसको ऐसे बोलो कि मैं डेडलाइन का बड़ा प्रेशर मेरे लिए प्रॉब्लम करता है. राइट. स्ट्रेस कैन बी कि आप काम नहीं कर सकते हो, आपको काम करना नहीं आता है, आप लोगों से बात नहीं कर सकते हो. ये चीज तो तुम्हारे साथ है नहीं. सुन रहे हो सौरभ? यस मैम. हमारा प्रॉब्लम डेडलाइन वाला सिचुएशन तुम्हारे लिए प्रेशर क्रिएट करता है. तो उसको बहुत स्पेसिफिक करके बनाओ कि डेडलाइन रिलेटेड प्रेशर इज समथिंग दैट आई कैनॉट हैंडल. इफ somebody gives me an assignment and tells me that I want it tomorrow or today evening, और ये मैं नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरा काम मैं अच्छे से करना चाहता हूँ और इस चीज से मुझे बहुत. लेकिन मैं तुमसे एक चीज पूछती हूँ सौरभ, कि तुम्हारा काम अक्सर डिलेड होता है क्या? यस मैम. हाँ, यस मैम, डिले होता है मैम कभी कभी. तो मीन्स कॉलेज में वगैरह ये मैम चीज है सौरभ की, ये चीज हमें थोड़ा सा अवॉइड करनी है. राइट. जैसे अगर तुम्हें कंपनी में तुम काम कर रहे हो, क्लाइंट के साथ तुम इंडिपेंडेंट काम कर रहे हो, वो अलग सिनेरियो है. लेकिन अगर तुम कंपनी में काम कर रहे हो और वो एक टीम बनाता है और वो बोलता है कि हमें ये चाहिए 3 वीक्स में ये प्रोजेक्ट. राइट. तो इसका उपाय क्या है कि 3 वीक्स मतलब उसने अगर तुम्हें 21 डेज दिए हैं तो तुम खुद को 16-17 दिन का डेडलाइन दो. इससे होगा कि तुम्हारा 90-95% 16-17 दिन में कम से कम तो हो जाएगा, क्योंकि तुम बोले तुम्हारी टेंडेंसी लेट करने की है. राइट. तो तुम अर्ली करके रखो अपना पर्सनल डेडलाइन. तुम भी 21 डेज रखोगे तो 100% डेडलाइन लेट होगा. और कोई लोग होते हैं जहां थोड़ा डेडलाइन वेरिएशन चलता है, लेकिन ये यूजुअली कॉलेज में थोड़ा चल जाता है, लेकिन यूजुअली ये सब कंपनी में नहीं चलता है. और जितनी अच्छी कंपनी होगी वो डेडलाइन के बारे में उतने ही पर्टिकुलर होते हैं. इन द सेंस मैं तुम्हें ये चीज बता रही हूँ, अगर तुम्हारा मान लो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, तुम लोग हमारी टीम काम कर रही है
तो तुम्हारा टीम लीड जो है वो 15, 16, 17 दिन बाद हो सकता है तुम देखना चाहे कि प्रोजेक्ट किस लेवल पे है। तो तुम्हारा उसी वक्त से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। अगर वो देखता है कि 90% प्रोजेक्ट फुलफिल्ड है, अच्छा चल रहा है इतने इसका, तो वो बोलेगा ठीक है अभी 4 दिन है और इसको ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो। और दूसरी बात है कि कभी कभी वो लोग मॉडिफिकेशन कराते हैं। Yes, तो ma'am. अपने एंड पे तुम ये चीज बोलो कि आई कैन नॉट हैंडल डेडलाइंस, कॉजेज स्ट्रेस फॉर मी, लेकिन तुम अपने मन में, ये बोलने का नहीं है इंटरव्यूअर को, लेकिन अपने मन में तुम डेडलाइन हमेशा अर्ली डेडलाइन करके रखो। जैसे अगर किसी को कॉलेज पहुंचने में लेट होता है हमेशा, या ऑफिस पहुंचने में, मान लो 9:30 रिपोर्टिंग है और वो बंदा हमेशा 30, 31, 32, 35 पे पहुंचता है, तो उसको क्या करना चाहिए कि उसको टारगेट रखना चाहिए कि मैं 9:15 कॉलेज कैंपस में पहुंच जाऊंगा। तो 9:15 से थोड़ा लेट होगा तो 9:25 होगा, बट पहले से ही उसने 9:30 टारगेट रखा है अभी, तो फिर मुश्किल है वो, तुम समझ रहे हो ना। तो तुम अपने लिए अर्ली डेडलाइन रखो, राइट? ओके, संचिता Yes, ma'am. बोलो। Yes. My weakness is public speaking has always been challenged for me. Okay. I think it's because I focus Because you focus too much on what other people think, and yeah, I very need right. to You're very realize right. that people are देखो, often तुमने more प्रॉब्लम focused. बता दिया संचिता, तुमने सॉल्यूशन भी खुद ही बता दिया है। ये प्रॉब्लम इसके लिए है बिकॉज तुम सोचती हो कि Yes, अच्छा ma'am. दूसरा क्या सोच रहा। सबसे बड़ी बात है दूसरा कोई भी कुछ इतना नहीं सोचता है, राइट? क्योंकि जो दूसरा बंदा है वो क्या तुमसे वो एक क्वेश्चन पूछता है, वो उसका आंसर देता है, वो आंसर थोड़ा आगे पीछे इधर उधर करके दो उसको, एज लॉन्ग एज तुम अपनी बात समझा लोगी वो बंदा तुमसे सेटिस्फाइड है। इतना टाइम किसको है आज के जिंदगी में कि वो दूसरे के बारे में बैठ के सोचे, वैसा होता ही नहीं है, राइट? तो तुमने प्रॉब्लम भी बता दी और उसका सॉल्यूशन भी तुम समझती हो। Okay, Sanchita, towards the end, I will ask you again about your strengths वाला जो question है. Just let me come to Jagriti now. Jagriti, no, not Jagriti. Let me come to Namita. नमिता, तुम्हारा वीकनेस क्या बोलना चाहोगी? नमिता का कनेक्शन टूट गया है। ओके, जागृति, Yes, ma'am. वीकनेस क्या बोलना चाहोगी? Ma'am, my weakness is that I take some more time to adjust in a new environment and open with up new people. ओके, ठीक है, एब्सोल्युटली फाइन। तो इसका वो अगर तुमसे पूछेगा कि वो तुम कैसे तुमने इसको कैसे सुधार रही हो, तो तुमको क्या बोलना है? Yes. Ma'am, I'm trying to तुमको सिर्फ ये बोलना है कि सर बिकॉज आई एम न्यू टू द जॉब फील्ड, आई एम अ फ्रेशर, इसलिए शुरू में ये टाइम लगेगा, बट within a few months or within a few years this will automatically go away by itself. तुमको कुछ न्यू, जहां तुमको न्यू एनवायरमेंट मिलेंगे और तुम लोगों से कुछ वीक्स या कुछ मंथ्स बात करोगे, ये चीज खुद ब खुद चली जाएगी, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगा, राइट? Yes, ma'am. Okay, so we have lost the connection with who was that? Ram Barate. Vaya aur gaya. So on this note, now we have done. I'll just speak to Sanchita towards the end. But today we have covered things about, and each of you spoke about your strength and your weakness
एंड वी ऑल्सो केप्ट इन माइंड कि अगर हमसे इंटरव्यूअर पूछता है तो हमें स्ट्रेंथ के एग्जाम्पल्स देने हैं, और वीकनेस अगर पूछता है तो लंबी लिस्ट नहीं देनी है, राइट? और हमें ये भी नहीं बोलना है कि हम में कोई वीकनेस नहीं है, वो सुन के लगता है कि तुम बहुत एरोगेंट हो, ये कभी नहीं बोलना है, राइट? और हमेशा, ये मेरा लास्ट बुलेट देखो, स्क्रीन शेयर पे है, कि तुम हमेशा इसको एक्सप्लेन, तो जैसे सौरभ बता सकता है कि सर मैं अपने लिए अर्ली डेडलाइन रखता हूँ, जिससे कि मुझे डेडलाइन रिलेटेड स्ट्रेस नहीं हो। जागृति बोलेगी कि सर मैं अभी न्यू हूँ इसलिए मुझे थोड़ा स्ट्रेस होता है नए लोग और इन्वायरमेंट से, लेकिन कुछ दिन बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। संचिता बोलेगी कि मुझे नए लोगों से या पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ा स्ट्रेस होता है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मुझे लगता है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, और मुझे लोगों ने बोला कि इतना वो कभी भी उस पर ध्यान नहीं देने का, या अपने माइंड को उससे हटाओ, अपना काम अच्छे से करो, दूसरा लोग कुछ भी ऐसा कुछ नहीं सोचता है। तो हमने जब वीकनेस बताया तो हमें उसका सोल्यूशन भी ये होना चाहिए। Now, नमिता निगम, I had asked her, but उसके साथ कनेक्शन फिर चला गया है। I'm still waiting for Namita to join back. Now, Sanchita, Saurabh, you can leave the meeting now. For all purposes, yours is done. Jagriti, आपका भी हो गया दोनों तरह का feedback, right? Sanchita, I want to ask you about your strength again. तुम क्या बोलना चाहोगी?